let's quickly start with the topic. Before starting with the topic, there are some prerequisites that we should have. The first is Telegram, either in the application format, either in the web format. Okay. The second one is in library that I'm putting in the chat. So you can just add it in your VS Code or Jupyter, whatever you're using. So this is the library that we're going to use, the request schedule. Okay, so what is our plan? We're going to create a bot with the help of Telegram APIs, and that bot will be controlled by the code that we will be using. It depends like how we will be programming or what code we are writing. As of now, what we are creating a bot for sending the reminders. For example, you could say like whenever you get any application in which you are registering or you're logging in and it sends you reminders. For example, WhatsApp sent you reminders, Swiggy, Zomato sent you reminders, Uber sent you reminders, or many reminder apps that are present, which is sending you some notifications as a reminder on your smartphone. Okay, so with the help of Telegram APIs, we can do that. And again, when I'm saying Telegram APIs, it's not like we cannot do this on WhatsApp APIs. We can do this on the WhatsApp APIs, but most of the WhatsApp API services are not free. Okay, and 99% are like chargeable. They charge you some amount, like it's not like that huge amount of 200 $300. It's like $1 $2, like this type of amount they charge for using those APIs. But Telegram APIs are almost free, so we can use them. Okay, so one API that we are going to use. Before that, I want you to check in your Telegram about what I'm putting in the text. So basically what you have to do, you have to simply search in your Telegram bot father. This is something which is going to help us for creating our APIs. So simply, I want you to like do this code with along with me. Like I will not be explaining first and then you will be doing it by yourself. I want you to just do it with me because there will be a lot of errors that you will be facing. So just search for this bot father, and then what will be happening when you will be searching for the bot father? This is an bot that creates the bot, and it will be giving you some APIs and authorization token that we're going to use in our code, that we're going to put in the code, which will be getting the request for us. Like whenever we will be using the request library, this bot father APIs will be helping us. Okay, so now what will happen when you click on the bot further? It will simply like a text format, that if you are a Telegram user, you're already aware that a chat box will open of this bot father board. You have to write slash new. So when you will be putting slash new, it will be asking you few more questions like what name want to put of your bot. For example, when you're creating a bot, you have to put a name. So for example, you selected a name XYZ. In our let's do one thing. Let me share my screen. Sydney Bollywood ke samachana. Actually, I do not have some account which is like I can share on the screen, but I have to. Okay. Okay. I hope you can see my screen. Okay. Okay. So what you have to do, this is our bot. When I'm saying bot, ignore that word. That is bot.
मैं भटक जाता हूँ. Okay, so when we are designing this bot, what we have to do? As of now, I have designed it, but in case you want to design it, look, this is the bot father. Okay, so what I did first, whenever you will be just opening it, let's do one thing and one more thing. Let me get the name. अगरलीन ऐसा नैसा मुनी बिलाई को शेरोरा अफरा सिमरत सिंह सुमन्यु. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हर एक स्पेसिफिक यूज़र आईडी बनती है. फॉर एग्जांपल, हर एक स्पेसिफिक यूज़र आईडी बनती है, और वो यूज़र आईडी अगर फॉर एग्जांपल मुझे आपकी यूज़र आईडी मिल गई या फिर आपका ऑथराइजेशन टोकन मिल गया जो ये एपीआई जनरेट करेगा, मैं उसका यूज़ करके आपको स्पैम भेज सकता हूँ अनलिमिटेड. तो मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, अगर मुझे रात को 12 बजे स्पैम आने स्टार्ट हुए फिजूल के मैसेजेस, या फिर कोई भी पता पड़ रहा है मेरी एपीआई डाल दी और मुझे आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने नाम देख लिया, मैं सबको पकड़ूंगा. ठीक है, क्योंकि अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो वो ऑब्वियसली बात दिखने वाला ही है. अम, अभी उतना पार्ट कट कर देना. ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं वहां तक जाऊंगी क्यों, मैं नहीं दिखाने वाला अपनी एपीआई से. ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द स्क्रीन. तो सबसे पहले आपको बॉट फादर सर्च करना है, फिर आप स्टार्ट पे जाओगे तो ये ऐसा करके दे देगा. ये बहुत सारे एडिट बोट्स, ये जो इसके खुद के बॉट बॉट हैं. ठीक है, या फिर अगर इसके फीचर्स जितने भी है सारे वो दिखाते हैं कि एडिट करना है या बॉट सेटिंग चेंज करनी है, जो भी करना है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना था, एक न्यू बॉट क्रिएट करना था. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, न्यू बॉट. जैसे ही मैं लिखूंगा ये मेरे से पूछेगा ऑलरेडी न्यू बॉट, हाँ सीधा नाम. सो फॉर एग्जांपल आई पुट अ नेम ऑफ टेक फ्यूजन 2.0, फिर ये लिखिएगा कि अब आप क्या करो, इस बॉट को एक यूजर नेम दो. तो ये यूजर नेम वैलिड नहीं था, तो फाइनली कहाँ पर रुकना मुझे, बस बस यहीं तक. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बॉट क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, इस नाम से मेरा एक बॉट क्रिएट हो गया, और इसको आप जब नीचे देखोगे ना तो ये आपको साथ में ही एक ऑथराइजेशन टोकन भी शेयर करेगा. ठीक है, वो ऑथराइजेशन टोकन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने कोड में. ठीक, इसमें डिलीट बॉट का ऑप्शन आता है क्या, पता नहीं. अगर मैं देखूंगा बॉट फादर को मे भी डिलीट कर देगा तो मैं कर ही सकता हूँ स्क्रीन शेयर. छोड़ो, ये रही मेरी एच टी टी पी ए पी आई. और इस पे हम क्या करते हैं कि ये जब मुझे एपीआई क्रिएट करके इसने दे दी, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, यूज़ करूँगा. और ये एपीआई स्पेसिफिक है मेरे टेलीग्राम के लिए और किसी चैट के लिए नहीं, मेरे टेलीग्राम चैट. यस आयशा. सर अगर आप एडिट बॉट करते हैं फिर वहाँ पे बॉट सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं बॉट को. अच्छा, आपने ये बॉट फादर यूज़ किया है कभी? नो सर, मैंने अभी देखा. अच्छा ठीक है फिर, अब इसलिए मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो हो गया डिलीट करने का, वरना मैं बॉट फादर को ब्लॉक कर दूंगा. तो ठीक है, मैं कर सकता हूँ शेयर. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एपीआई आ गई. इन शॉर्ट हमें ये बॉट फादर से और कुछ लेना देना नहीं था. एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था जो फ्री में देता है, मैं तो ये बॉट फादर एक है जो फ्री में एपीआई देता है, तो मुझे बस इसकी एपीआई चाहिए थी, बस हो गया इसका काम खत्म. ये मुझे एपीआई मिल गई, एक बॉट क्रिएट होके मिल गया मुझे. अब ये एपीआई को मैं यूज करूंगा अपने कोड में, बट जब मैंने टेक फ्यूजन 2.0 नाम से एक बॉट क्रिएट किया, तो जब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, सर्च में जब जाओगे टेक फ्यूजन 2.0 नाम से, ये रिसेंट में, तो ये मुझे क्या दे देगा, मेरा जो बॉट क्रिएट हो चुका है किसने बनाया, बॉट फादर ने. अब ऐसा नहीं है कि ये बॉट फादर ने आपको पूरा प्रोग्राम करके दे दिया, सब कुछ करके दे दिया. ये बस आपको ना एक चैट बॉक्स बना के दे दिया, इसने प्री डिफाइंड चैट बॉक्स बना के दे दिया टेलीग्राम पे. ठीक है, और अभी कुछ भी नहीं है इस पे. ठीक, तो मुझे क्या अभी कॉपी पेस्ट करना है, बस ये जो एपीआई मिली है इसकी एच टी टी पी एपीआई, बस उतना. अब हम आते हैं अपने कोड पे. ठीक है, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू शेयर माई कोड. ओके,
Okay. Now, what I'm going to do, I'm going to put my code. ये रहा मेरा code. Bot father, बहुत बढ़िया. Just a minute. ठीक है. अभी फिलहाल के लिए पूरे कोड को ना देखते हुए हम बस इसको लाइन बाय लाइन एक बार देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें. लुक अगेन, अगर किसी को बीच में कुछ डाउट वगैरह हो तो माइक ओपन करके बोलना, वरना मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही. तो यहाँ पे जो हम अभी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज कर रहे थे वो तो है ही है, और रिक्वेस्ट शेड्यूल अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो फिर आपको ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वरना हम इसमें दो और लाइब्रेरीज यूज करते हैं, फेमस लाइब्रेरी ऑफ पाइथन, इंपोर्ट टाइम. जब भी आपको टाइम रिलेटेड कुछ भी चाहिए होता है तब आप इसको यूज करेंगे. व्हेन आई एम सेइंग टाइम रिलेटेड मतलब रियल टाइम, मतलब कि जब मेरा टाइम एक वॉच की तरह इसमें चलता रहता है कि अगर आप मैं चाहूँगा यूएस का टाइम जोन, ईएसटी, एमएसटी, पीएसटी, कोई भी आईएसटी, सबके टाइम क्या होंगे इसमें अवेलेबल हैं और वो सारे रियल टाइम में अपडेट होते रहते हैं. तो वो किसमें, टाइम लाइब्रेरी में. दूसरा शेड्यूल लाइब्रेरी में यूज करने वाला हूँ जिसके कुछ फंक्शंस हम यूज करेंगे, इसलिए हमें शेड्यूल लाइब्रेरी की जरूरत है, जो क्या करती है, रिमाइंडर्स लगाना हो या फिर आपको मेल शेड्यूल करना हो या फिर आपको मैसेज शेड्यूल करना हो या फिर कुछ भी, यूट्यूब पे आप पोस्ट डालते हो, सॉरी यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड करते हो वो शेड्यूल करते हो या कुछ भी, जब भी शेड्यूलिंग कुछ करना होगा तो शेड्यूल लाइब्रेरी के थ्रू ही होता है इन पाइथन. तो सबसे पहले जो हमारा इसमें टास्क है वो क्या है कि हमें अपनी जो टोकन आईडी है वो लेनी है. वो कहाँ से हम लेंगे, वो लेंगे जो हमने क्रिएट की थी बॉट फादर से. ठीक है, और अब मैं इसको एक नाम दूंगा जिसको मैंने नाम दिया बेस यूआरएल. अब मुझे कोई बताएगा कि ये एफ क्या है. बहुत बार हम देख चुके हैं एफ का मतलब क्या होता है. एफ स्ट्रिंग. एफ स्ट्रिंग मतलब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग. मतलब इसका क्यों स्पेसिफिक यूज करते हैं. लाइक अगर मैं एक नॉर्मल स्ट्रिंग क्रिएट करूँ तो उसमें क्या दिक्कत है, मैं एफ स्ट्रिंग क्यों यूज कर रहा हूँ. अगर नॉर्मल होता फिर बॉट टोकन की जगह आपको ये पूरा लिखना पड़ता. अब आपने यहाँ एफ स्ट्रिंग यूज किया तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आ जाएगा. फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यही यूज होता है कि एफ स्ट्रिंग एक कुछ नहीं है, बस ऐसे मतलब फैंसी चीज है, बाकी और कुछ नहीं है. कि जब भी मैं कोई स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल या फिर कुछ भी एक ऐसा फंक्शन कुछ भी ऐड करना होगा मुझे, तो ये ना एक जैसे दिखा रहे ना, इन शॉर्ट एक एक्सेसिबल बना देता है. वरना हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को हम रीड नहीं कर सकते, मतलब स्ट्रिंग में जो फंक्शंस है वो में फंक्शंस काउंट ही नहीं होते. ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल और एनीथिंग इनसाइड अ टेक्स्ट और इनसाइड अ स्ट्रिंग. और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, बस कर्ली ब्रेसेस यूज करना होता है. जो भी वेरिएबल वगैरह पुट करना चाह रहे हो या फंक्शन पुट करना चाह रहे हो या फिर लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, कुछ भी वो आप यहाँ पे रख सकते हो. ठीक है, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ रिमाइंडर्स नाम की. ये तो हो गया कि मेरा, इसके अलावा मुझे बॉट फादर से कुछ लेना देना नहीं है, बस हो गया इतना तक. ठीक है, अब आते हैं हम कि जो हमारा पर्पस था वो था कि रिमाइंडर्स के लिए बॉट क्रिएट करना जो हमें टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स देता रहे, जो हम उसमें पुट करें एक अलार्म क्लॉक की तरह और कुछ नहीं. ठीक है, नाउ अब सबसे पहले हमारा इसमें क्या है कि ये क्या करेगा कि हमने एक ना डब्बा बना लिया जिसमें हम रिमाइंडर्स रखते जाएंगे. जो भी रिमाइंडर्स क्रिएट होंगे वो यहाँ पे कीज एंड वैल्यूज के थ्रू स्टोर होते रहेंगे. लेकिन इसके जो कीज एंड वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे इसमें चैट आईडी, यानी कि हर एक की स्पेसिफिक चैट आईडी और टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नया चैट ओपन करता हूँ तो नई चैट आईडी जनरेट होगी और विद जो भी टेक्स्ट उसमें लिखा होगा वो, तो वो सब किस में जाएंगे, इस रिमाइंडर्स में जाएंगे. ठीक है, अब ये जो लास्ट अपडेट आईडी है ये क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल जब भी मैं एक चैट स्टार्ट करता हूँ फिर एक नई आईडी जनरेट होती है, फिर दोबारा करता हूँ फिर नई जनरेट होती है. तो इनिशियली मैं इसको नन वैल्यू दे रहा हूँ जिससे कि अगर मैं पहली बार जब चैट स्टार्ट करूंगा तो बैक में नन दिखे. वरना अगर मैं ये लास्ट अपडेट आईडी वाला वेरिएबल यूज नहीं करूंगा फिर क्या होगा कि जब आप बॉट को रन करते जाएंगे, इसको पीछे बैक का कुछ नहीं पता, इसको बैक के रिमाइंडर्स का नहीं पता. तो जब आप रिमाइंडर्स को चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल व्यू करेंगे, तो इसको बैक की आईडीज ही नहीं पता है. आईडीज ही नहीं पता है तो इसको पता ही नहीं कौन कौन से रिमाइंडर सेट है. ठीक है, तो ये दो चीजें हम यूज करेंगे एज अ
वेरिएबल बोल लो या फिर स्टोरेज के लिए कुछ बोल दो, जो भी स्टोरेज बॉक्स कुछ बोल दो। पहला होगा रिमाइंडर्स, जो सारे रिमाइंडर्स को स्टोर करेगा, दूसरा आईडीज, ठीक है। अब ये हमारा सबसे पहला होता है कि जब भी अगर मान लो मैं अगर बॉट क्रिएट कर रहा हूँ इसमें, तो सबसे पहले मैं क्या अब आऊँगा, सीधा फंक्शंस क्रिएट करूँगा। देखो ये काम कैसे करते हैं, लुक। तो होता क्या है कि जब मैंने एक कोई एपीआईज ले ली, अब एपीआईज से करना क्या है, रिक्वेस्ट ही भेजनी है, चाहे वो मुझे अपलोड की हो, चाहे वो मुझे डेटा रिट्रीव करने की हो, या फिर डिलीट करनी हो, कुछ भी करना हो। पर कौन सा डेटा है ना, डेटा भी तो चाहिए ना। हमने अभी क्या किया, एपीआईज के थ्रू अपनी पाइथन स्क्रिप्ट को, जो ये आपको पाइथन स्क्रिप्ट दिख रही है उसको, और जो टेलीग्राम का बॉट था वो वाले जो टेक फ्यूजन 2.2 नाम का जो बॉट हमने क्रिएट किया, उन दोनों को कनेक्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे रोल आएगा रिक्वेस्ट का, जो हम फंक्शंस के थ्रू उनमें प्रोग्राम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे उसमें कुछ भी करना होगा, कुछ भी, तो वो मैं क्या किससे कंट्रोल करूँगा, फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ, वो है सेंड मैसेज। सेंड मैसेज नाम का मैं एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके दो वैल्यूज में इसमें इनपुट रख रहा हूँ एज एन इनपुट। वो क्या है, चैट आईडी और टेक्स्ट, जो मुझे कहाँ पे मिली है, रिमाइंडर्स में और लास्ट अपडेट आईडी से, जो मैंने वहाँ पे दो डिक्शनरी क्रिएट की है, ग्लोबल डिक्शनरी, ठीक है। इसमें भी मैं वही चैट आईडी और टेक्स्ट को ही स्टोर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कौन सा फंक्शन बनाया, सेंड मैसेज नाम का। अब वापस से मैंने जो यूआरएल था, उस यूआरएल को मैंने सेंड मैसेज करके लिखा। तो बेसिकली ये होता क्या है कि जब भी आप किसी यूआरएल के बाद कोई स्पेसिफिक कमांड लिखते हो, सेंड मैसेज, तो ये ना एक स्लैश करके इसको हम बोलते हैं एपीआई ऑन कॉल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि ऐसे समझो, जब मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, वेबसाइट ओपन करने के बाद मेरे पास एक यूआरएल आता है, अब मैं उसका स्पेसिफिक नाम बोल रहा हूँ। अब मैं उस वेबसाइट के अंदर कोई दूसरा होम पेज पे था, मैं किसी दूसरे पेज को ओपन कर रहा हूँ, तो उसको कुछ स्पेसिफिकली कुछ बोलते हैं वेब डेव में। कुछ आपको समझ रहा होगा कि जब मैं होम पेज से दूसरे पेज पे जाता हूँ, स्लैश करके उस पेज का नाम आ जाता है ना। किसी को पता है उसको क्या बोलते हैं, एक कुछ टेक्निकल वर्ड होता है, आई एम मिसिंग दैट, आई डोंट नो, बट आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कि फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट खोली, उस वेबसाइट का यूआरएल ऊपर दिखता है, और उस यूआरएल के बाद अगर मैं कोई दूसरा होम पेज से किसी स्पेसिफिक पेज पर जा रहा हूँ, तो बगल में स्लैश करके आता है, उसको कुछ तो भी नाम होता है, वो नाम मैं देखूंगा, मुझे मिल गया तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वो कैसे जनरेट होता है, वो ऐसे जनरेट होता है कि जब मैंने यहाँ पे लिखा है लाइन नंबर 15 में कि यूआरएल इक्वल्स टू बैटरी चार्ज इसकी, ठीक है। तो यूआरएल इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लिखा है अगेन बेस यूआरएल सेंड मैसेज। तो अब सेंड मैसेज एक नई टैब आ गया या फिर नया पेज आ गया। अब यूआरएल चेंज हो गया मेरा, वो एक नए पेज पे शिफ्ट हो गया, जिसका यूआरएल होगा ये पूरा ऊपर का बेस यूआरएल स्लैश सेंड मैसेज। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी चैट आईडी को और टेक्स्ट को स्टोर करूँगा। अब कोई मुझे बताएगा कि ये जो मैं डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, ये पाइथन की डिक्शनरी है या फिर जेसन की डिक्शनरी है, इसका फॉर्मेटिंग क्या होगी, पाइथन या जेसन? क्योंकि हम रिक्वेस्ट के पाइथन, सब लोग सही, पाइथन ही होगा, जेसन तो नहीं होगा। जब तक आप एपीआईज के थ्रू डेटा को लेन देन नहीं कर रहे हो, तब तक वो पाइथन की ही है। ऐसा मत कंफ्यूज हो जाना कि अगर रिक्वेस्ट के थ्रू आप एपीआईज के अंदर डिक्शनरीज क्रिएट कर रहे हो, तो उनको जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे तो उन्हें रहेंगी नहीं। यहाँ पे हम क्रिएट ही कर रहे हैं। अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ कहीं से, तब वो डिक्शनरी जेसन फाइल में होती है, फिर मुझे उसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। एज ऑफ नाउ ये पाइथन की एक डिक्शनरी है। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा गेट फंक्शन, ठीक है, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के गेट फंक्शन का, जो किससे कनेक्ट होगा, यूआरएल कौन सा होगा हमारा, जो मैंने सेंड मैसेज करके एक नया यूआरएल क्रिएट किया उससे। और उसमें पैरामीटर्स क्या होंगे, मतलब जो उसमें वैल्यूज क्या चेक करेगा, ये पैरम्स फंक्शन में पैरम्स इक्वल्स टू आप वो लिखते हो जो आपको चेक करना होता है उस यूआरएल के अंदर, ठीक है।
तो उसमें मैं क्या चेक कर रहा हूँ, चैट आईडी और टेक्स्ट। 1 सेकेंड। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि यूआरएल कौन सा हो गया हमारा, जो पूरा हमने अभी यहाँ पे सेंड मैसेज करके एक नया यूआरएल क्रिएट किया वो, और इसमें पैरामीटर्स हमें कौन से चेक करने हैं, चैट आईडी और टेक्स्ट। उस यूआरएल में जो भी ये जो मैं गेट के थ्रू मैं डेटा एक्सेस करूंगा, वो डेटा कौन से एक्सेस करूंगा, चैट, जहाँ पे होगा मुझे कॉलम में चैट आईडी और टेक्स्ट, उसके अलावा और कुछ नहीं। हमने जनरेट भी नहीं किया बट स्टिल उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ लुक, अ फंक्शन टू हैंडल यूजर कमांड्स। अब यहाँ से हमारा काम खत्म हो गया कि ये तो हो गया कि सेंड मैसेज भी हो गया, हमने एक रिमाइंडर के लिए डब्बे भी बना लिए, और हमने टोकन भी क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया कि अपनी एपीआई को भी क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। अब मैं फंक्शंस बनाऊंगा, वो फंक्शंस क्या होंगे, ये मेरे अब आ गई बात कि मैं कितने फीचर्स ऐड करना चाहता हूँ अपने ये रिमाइंडर नाम के टेकफ्यूजन 2.0 के रिमाइंडर बॉट में। ठीक है, अब जितने मैं फंक्शंस क्रिएट करूंगा उतने ही फीचर्स ऐड होते जाएंगे। अब भले ही मुझे इसमें एक रिमाइंडर भेजने हो, 2 रिमाइंडर भेजने हो, फिलहाल के लिए अभी जो हम फीचर्स इसमें क्रिएट करेंगे वो होगा रिमाइंडर सेट करने का, सारे रिमाइंडर्स को देखने का, और किसी रिमाइंडर को डिलीट करने का, 3 फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आपको ना, अगर आप नॉर्मली बनाने चाहेंगे कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बना दिया बॉट के फंक्शंस, बट आपने अपडेट के लिए कोई फंक्शन क्रिएट नहीं किया, तो होगा क्या कि जब भी आप न्यू चैट पे जाएंगे या फिर नया चैट ओपन करेंगे, जैसे कि अभी मैंने अब खोला तो वो चल जाएगा, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं खोलूंगा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि चैट आईडी अपडेट हो गई और मैंने अपने फंक्शन में या फिर अपनी पाइथन स्क्रिप्ट में मैंने दूसरी चैट आईडी को गेट करने के लिए कुछ बनाया ही नहीं। समझ रहे हो, यानी कि एक जो पहली चैट आईडी होगी वो तो जैसे ही मैं रन करूंगा वो आ जाएगी मेरे पास, बट एक बार मैंने अपना टेलीग्राम बॉट जो है वो मैंने ऐप को हटा दिया, फिर वापस से मैंने ऐप खोला तो मेरी चैट आईडी वापस से जनरेट होगी। ठीक है, तो चैट आईडी अब बदल गई तो काम नहीं करेगा, क्योंकि स्क्रिप्ट तो रन होनी ही चाहिए हर टाइम, तभी वो ऐप काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर मेरी स्क्रिप्ट रन कर रही है और मैंने चैट आईडी को अपडेट करने के लिए कोई फंक्शन नहीं बनाया है, तो ये बार बार चैट आईडी को चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो क्या करेगा, हमारी अपडेट्स को हैंडल करेगा, जो भी हम वहाँ पे डालने जा रहे हैं, चाहे हम जो भी उसको टेक्स्ट में लिखेंगे अपने बॉट को। ठीक है, सो पहला है यहाँ पे कि हम एक यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं कि लास्ट अपडेट आईडी का। यस अफराद, सर ये चैट आईडी कहाँ से हो रही है जनरेट? सॉरी, ये जनरेट कैसे हो रही है चैट आईडी? चैट आईडी ये जो बॉट नाम का हमने बॉट क्रिएट किया ना, बॉट फादर से यस वो सर। उसमें ऑटोमेटिकली चैट आईडी जनरेट करता है। वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जिसने बॉट क्रिएट किया है, जिसने हमें एपीआईज दिए हैं, वो कंट्रोल करता है, वो एपीआई पे ही होता है। न्यू एपीआई डिपेंड करेगा कि चैट आईडी आप कौन सी जनरेट कर रहे हो, वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, अगर आप सर हम जी सॉरी बोलिए। सर हर सेशन के बाद चेंज होती है बॉट टोकन? सॉरी, सर आफ्टर एवरी सेशन डज इट चेंज दिस बॉट यस, टोकन? आफ्टर एवरी सेशन हमारी जो चैट आईडी होगी वो चेंज होगी, वही हम हैंडल करने के लिए ये वाला फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। बाकी अगर वो चेंज नहीं होती तो हमारी जो अपडेट होती है हर बार हमें एक ही चैट आईडी पे मिलती रहती। ठीक है, ओके, नाउ तो अब जो हमारा यहाँ पे बेस यूआरएल था, अब इसमें मैं एक और पेज पे जा रहा हूँ, जो लुक ये जो पेजेस बनाए हैं या फिर जो यूआरएल क्रिएट किया है वो बॉट फादर से क्रिएटेड है। ठीक है, उसको हम अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो हो गया कि एपीआईज क्रिएट करना, और एपीआईज क्रिएट करना इज लाइक अलग कहानी। हम फिलहाल एक एपीआईज को यूज करना सीख रहे हैं और बॉट क्रिएट करना सीख रहे हैं। ये जो बॉट है वो एपीआईज ही क्रिएट करके देता है। तो अब जो यूआरएल था
उस यूआरएल के मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ जिसका नाम है गेट अपडेट्स। ठीक है, तो लेट मी शेयर दिस होल कोड विथ यू, जैसे कि आप साथ ही साथ देखते चलो। यहाँ पे अपनी यूज कर लेना ये बॉट टोकन। आई डोंट नो इसमें लिमिट ना हो, बस लिमिट है। मैं इसको शेयर करता हूँ ग्रुप पे। मैंने सेंड किया। सबको छोड़ के भी रन करने मत पहुंच जाना प्लीज। ठीक है, पहले देख लेते हैं फिर रन करेंगे। लुक, ठीक है। तो जो हैंडल अपडेट्स है हमारा, उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पहला है कि गेट अपडेट्स। जो गेट अपडेट्स क्या करेगा, ये हमारे न्यू मैसेजेस को फेच करेगा। जो हम न्यू मैसेजेस भेज रहे हैं टेलीग्राम पे, जो भी हम, क्योंकि हम बॉट को कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं, टेलीग्राम से ही कर रहे हैं। मतलब जो भी मैसेजेस वगैरह हमें भेजने हैं या फिर हम कंट्रोल करेंगे वो किस पे करेंगे, टेलीग्राम के थ्रू करेंगे। तो ये क्या हो गया, हम वापस से दूसरी एपीआई को कॉल कर रहे हैं जिसका यूआरएल चेंज होके गेट अपडेट्स पे आ गया। और दूसरी यहाँ पे एक अपडेटेड चीज है, वो मैं यहाँ पे पैरामीटर्स चेंज कर रहा हूँ। पहले मेरे पैरामीटर्स क्या थे, पेलोड नाम के फंक्शन से आ रहे थे। ठीक है, जिसमें मैंने सिर्फ चैट आईडी और टेक्स्ट लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पैरामीटर्स को चेंज कर रहा हूँ। मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने पहला जो की दिया है वो है ऑफसेट। ये ऑफसेट क्या करता है कि ऐसा समझो कि अब मान लो कि मैंने कोई नई कमांड दी इसको, या फिर कोई नया मैसेज मैंने इसको सेंड किया, तो ये क्या करेगा, ये न्यू अपडेट्स को प्रोसेस करता है। और जो पुरानी वाली मैसेजेस थे ना, उनको क्या करेगा, स्किप कर देगा। और पता है, ये जब मैं अभी इसको क्रिएट कर रहा था, आई फेस दिस एरर, इसलिए मुझे ये लगाना पड़ा। क्योंकि हो क्या रहा था कि जब मैं इस बॉट को रन कर रहा था, तो जैसे ही रन करोगे तो ये बोलता है कि ऐड, या फिर कोई चीज़ मैंने कुछ भी बोला कि फॉर एग्जांपल मैं ये रिमाइंडर ऐड कर दो, तो ये क्या करेगा, रिमाइंडर ऐड तो करेगा, बट साथ में अगर तुमने कुछ एरर लिखा तो ये कुछ मैसेज भी सेंड करेगा। हम रन करके देखेंगे तब। तो बार बार ना पुराने वाले मैसेजेस को भी प्रिंट करता रहेगा बॉट। पुराने वाले मैसेज जितने भी होंगे सबको प्रिंट करेगा, जितनी भी होंगे सबको प्रिंट करेगा, क्योंकि डेटा होगा वो क्लियर नहीं होगा। यानी कि पिछले वाले जो मैसेजेस होंगे वो स्किप नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ एक ऑफसेट वैल्यूज। यानी कि मैं इसके लिए पैरामीटर्स वापस से चेंज कर रहा हूँ। और वो पैरामीटर्स अब क्या करेंगे, दैट विल इंश्योर कि मेरी जो न्यू अपडेट्स हैं वो प्रोसेस हो बाय स्किपिंग प्रीवियस हैंडल्ड मैसेज। यानी कि जो पुराने मैसेज हैं वो क्या होंगे, स्किप हो जाएंगे। उसके अलावा जो नए वाले मैसेजेस हैं वो वापस से अपडेट हो जाएंगे पैरामीटर्स में। ठीक है, और अब यहाँ पे जो मैं डेटा लूंगा यूआरएल का, जो पैरामीटर्स का डेटा लूंगा, यानी कि जो ऑफसेट का डेटा होगा, यानी कि जो लास्ट अपडेटेड आईडी होगी, वो मैं वापस से लूंगा जेसन फॉर्मेट में। इसलिए मुझे इसको वापस से कन्वर्ट करना है किसमें, पाइथन डिक्शनरी में। क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पैरम्स इक्वल्स टू पैरम्स, दैट मीन्स कि जो मैं डेटा मुझे आ रहा है वो किस वेरिएबल के थ्रू आ रहा है, पैरम्स नाम के वेरिएबल से, जिसको मैंने क्रिएट किया है। वेरिएबल बोलो डिक्शनरी, तो उसमें मैंने क्या वैल्यू में इनटेक कर रहा हूँ, एपीआई से कौन सी वैल्यू कॉल कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ ऑफसेट को, जो मुझे क्या दे रहा है, पुराने वाले मैसेजेस को स्किप करके नए वाले मैसेज। ठीक है, यानी कि
एक तो मेरे पास लास्ट अपडेटेड आईडी होगी जो जस्ट अभी क्रिएट हुई होती है वो, और जो न्यू मैसेज है वो। उसके अलावा पुराने जितने भी मैसेजेस हैं उनको ये क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। लेकिन वो सारे ऑलरेडी स्टोर हो चुके होते हैं किसमें, हमने जो पहले अपना एक डिक्शनरी बनाई थी दो, उनमें 2 बॉक्स क्रिएट किए थे, उसमें जो लास्ट अपडेट आईडी नाम का था वो स्टोर हो चुके हैं। बट स्किप हम करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें वापस से उन पे फंक्शन पे काम करना है। कैसे, वो हम देखते हैं नेक्स्ट में। लुक फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो हो गया कि हमने मान लो कि अपना एक चैट आईडी को या फिर यूजर आईडी को या फिर मैसेजेस को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब ये फंक्शन में मैं क्या क्या चेक करूंगा, ये तो मेरा डेटा क्रिएट हो गया। डेटा मैंने अब वापस से क्या क्रिएट कर लिया, डिक्शनरी क्रिएट कर ली डेटा नाम की। अब ये वापस से चेक करेगा कि जो स्टेटस कोड है 200 है या नहीं। ठीक है, अगर 200 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा। नाउ 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब ये क्या है, जब मैं यहाँ पे एक लूप क्रिएट करूंगा जिसका इटरेबल क्या है, अपडेट, यानी लूपिंग के लिए मैं किसको यूज कर रहा हूँ, अपडेट को। अब अपडेट किधर है, वो हमने कभी यहाँ यूज किया है क्या? कोई मुझे बताएगा ये अपडेट कैसे काम कर रहा है? जब हम फॉर लूप पढ़ रहे थे तब हम तो नॉर्मल देख रहे थे आई इन रेंज या फिर कुछ ऐसा। ये अपडेट क्या चीज है, कोई आइडिया? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर अपडेट इन डेटा डॉट गेट या जो भी, सिर्फ इतना ही देखो, फॉर अपडेट इन। तो ये अपडेट क्या है? हम जब फॉर आई इन रेंज लिखते थे या फिर फॉर आई इन एनीथिंग लिखते थे तो वहां पे वो आई क्या होता था? यार बस करो यार, बोलो, ये तो बिल्कुल बेसिक्स पे आ गए। ये अपडेट क्या है? मैसेज इटरेटर, ठीक है, और कोई बोलो। मैं नहीं बता, लुक, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अपडेट क्या है वो खुद से समझना। मैं आगे का बताता हूँ इसमें, क्योंकि दैट इज लाइक कि हमने बेसिक्स में देखा था कि अपडेट यहाँ पे कैसे काम करता है। आई इन रेंज जब हम यूज करते तो आई कैसे काम करता था, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तो रिवाइज करना जाके पुराने लेक्चर्स। खैर ऐसा किया तो फिर ये पूरा फंक्शन ही समझ नहीं आएगा। लुक, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे मैं अपडेट नाम का एक इटरेटर यूज कर रहा हूँ जो क्या करेगा मेरा, अब जो भी मैं डेटा यूज करूंगा उसकी वैल्यू मुझे अपडेट तो करनी ही पड़ेगी। अगर अपडेट नहीं करूंगा तो मैसेज कैसे अपडेट होंगे, चैट आईडी कैसे अपडेट होंगे, टेक्स्ट कैसे अपडेट होंगे। तो इसलिए मैंने एक इटरेटर बनाया अपडेट नाम का, जो हम आई नाम का बनाते थे ना, इसके बजाय मैंने उसको नाम दिया अपडेट। और इटरेबल क्या है यहाँ पे, जो हमारा डेटा हम रिसीव कर रहे हैं ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन के थ्रू, और रिजल्ट नाम के कॉलम से या फिर रिजल्ट नाम के आइकन से, उसमें रिजल्ट नाम से, या फिर ये समझो ये क्या है, ये खाली डब्बे कभी देखे हैं आपने? कभी अगर प्रोग्रामिंग में इनको क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया है? कि अगर मैं लिख रहा हूँ डेटा डॉट गेट और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिजल्ट, और दूसरा मैं लिख रहा हूँ ब्लैंक लिस्ट। एक तो मैंने रिजल्ट नाम के लिस्ट क्रिएट की और दूसरा मतलब रिजल्ट नाम की लिस्ट में टेबल ढूंढ रहा हूँ और दूसरा ब्लैंक में देख रहा हूँ। कुछ आइडिया? लुक, इसको हम बोलते हैं फॉल बैक्स। होता क्या है कि जब हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मैं डेटा तो रिसीव कर रहा हूँ बट अभी तक कोई रिजल्ट जनरेट ही नहीं हुआ, या फिर कोई मैसेज अभी तक है ही नहीं, या फिर कोई चैट अभी तक है ही नहीं। तो तब तो ये पूरा सब कुछ जो भी है वो एरर शो करने लगेगा ना, क्योंकि अभी तक कोई डेटा मेरे पास बना ही नहीं है, कोई मैसेज जनरेट ही नहीं हुआ, मैंने तो बस जस्ट रन किया है अभी। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, या फिर मैंने डिलीट कर दिया सारा कुछ। इसके लिए हम हमेशा जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर जब भी कोई हम कहीं से इनपुट ले रहे होते हैं तो हम उसमें 2 ऑप्शन देते हैं, आइदर रिजल्ट आइदर
फॉल बैक वैल्यू जो कि होती है नल, जो यहाँ पे मेरी जो लिस्ट है वो नल, तो ये क्या करेगा, 0 को ऐड करेगा इंस्टेड ऑफ एरर के। ठीक है, इन शॉर्ट ऐसा समझो कि जब मैं डेटा डॉट गेट से रिजल्ट्स के लिए कॉल करूंगा और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले क्योंकि वहां पे कोई रिजल्ट जनरेट नहीं हुए थे, तो फिर ये क्या यूज करेगा, ये यूज करेगा फॉल बैक वैल्यूज का या फिर फॉल बैक लिस्ट का जो हमने जनरेट किया। ठीक है, डेटा डॉट गेट इज लाइक अ फंक्शन, ये जो गेट फंक्शन है, इस गेट फंक्शन के पीछे का जो कोड होगा, उस कोड में कहीं तो भी रिजल्ट एज एन रिटर्न वैल्यू होगा जहां से मुझे वैल्यूज मिलती है, बट इन केस वहां पे कोई रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ ड्यू टू सॉर्ट ऑफ एनी रीजंस, तो मैं क्या करूंगा, उस डेटा डॉट गेट में जो मुझे वैल्यू आएगी वो आएगी 0 0, और वो 0 अगर आप ऐसे फॉल बैक के लिए लिस्ट नहीं डालोगे ब्लैंक लिस्ट, तब आपको एरर आएगा अगर वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए हम जब भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं और हमें पता होता है कि यहाँ पे यूजर इनपुट आ रहा होता है, तो यूजर इनपुट में कहीं हमारा कंट्रोल नहीं है क्योंकि हमारे पास इनपुट है ही नहीं, तो हम इनपुट यूजर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम हमेशा वहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉल बैक बना के चलते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखोगे इसमें हमने फॉल बैक कितनी जगह यूज किया है, जहां जहां भी हम यूजर इनपुट लेंगे। ठीक है, तो अब एक तो हमारा हो गया मैसेज। ठीक है, अब ये मैसेज में भी हम फॉल बैक ले रहे हैं कि अगर कोई मैसेज नहीं है तो ब्लैंक 0 जाएगा। अब दूसरा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ चैट आईडी, जो कि जनरेट होगी वापस से किससे मिलेगी, एपीआई के थ्रू से। ठीक है, और चैट का जो टेक्स्ट आ गया, यानी कि जो मैसेज, वो मैसेज भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, इनकेस अगर कोई मैसेज नहीं है तो यहाँ पे मैसेज भी एक स्ट्रिंग की तरह, अब लिस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेटा सेट नहीं है, तो वो भी एक ब्लैंक स्ट्रिंग की तरह मुझे एक ब्लैंक डेटा भी मिल जाएगा इनकेस कोई भी टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, तो इन बिफोर मूविंग अहेड लेट मी रन दिस। ठीक है, जिससे कि मैं आपको पहले दिखा दूँ एक, यहाँ तक तो क्योंकि अब हो गया बेसिक, अब हम बात करेंगे फंक्शंस की, तो अब फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर कोड कैसे लिखा है वो देखते हैं। लुक, बॉट इज रनिंग, ये लास्ट में मैंने एक कोड लिखा था जिसमें मैंने बस इतना ही लिखा है कि प्रिंट करो रन द बॉट, जिससे कि मुझे पता पड़ जाए कि सब कुछ, सारे फंक्शन, सारे एपीआई सही से कॉल कर रहे हैं कि नहीं, अदरवाइज ये एरर थ्रो करता। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, अब हम वापस से जाते हैं अपने कहाँ पे, जो हमने चैटबॉट बनाया था वहां पे। जो टेलीग्राम बॉट हमने बनाया, जब तक ये कोड चलेगा तब तक ही चलेगा वो, कि जब हमने ये रोका तब वो चलना बंद कर देगा? यस, ठीक सो बेसिकली जो हमने टेलीग्राम बॉट बनाए हैं वो, उसका जो बैकएंड है ना वो हमारे सामने है, जो बॉट है वो फ्रंट एंड है। एपीआई मैं जब बता रहा था तो मैं वही तो बोल रहा था कि एपीआई इज लाइक बैकएंड, जो भी आपको बैक से डेटा मिलता है यहाँ पे, ऐसा समझो कि आप स्टोर में गए हो तो स्टोर का ये बैकएंड ये है, ये कोड, जो भी आप वैल्यूज दोगे वो कहाँ पे दोगे, वो चैटबॉट में जो आपने बॉट क्रिएट किया बॉट फादर के थ्रू, वो वैल्यूज कहाँ पे आएंगी, इस पाइथन की स्क्रिप्ट में। यहाँ पे कैसे आएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ स्टार्टिंग में वो एपीआई लिख रखी है जो वैल्यूज को वहां से गेट करती है। यहाँ पे वो वैल्यू चेक होंगी जो भी फंक्शन कॉल हो रहा होगा, क्योंकि एज एन इनपुट ही तो होगा, तो मैं पहले यहाँ पे आप, चलो देख ही लेते हैं। लुक, फॉर एग्जाम्पल ये एड रिमाइंडर के लिए है यहाँ पे। ठीक है, अब ये ट्राई एक्सपेक्ट मैं अभी एक एक करके समझाता हूँ, बट फिलहाल के लिए ऐसे समझो कि जब भी मैं रिमाइंडर ऐड करूंगा तो उसके लिए भी मैं चैट आईडी और टेक्स्ट चेक करूंगा, और टेक्स्ट की वैल्यू अगर अगर टेक्स्ट की वैल्यू मेरे डिफाइंड फॉर्मेट में हुई तो ये दिखाएगा कि आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, ऐड हो गया है, रिमाइंडर एडेड इवेंट, और जो भी टाइम आपके कोई वो वरना है दिखाएगा ये। तो ये वही है ना, जैसे आप बेसिक कैलकुलेटर आपने जब बनाना सीखा था कि आप इनपुट देते थे कि अगर ऐड करना है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब लिखना, ऐसे ही हमने एपीआई में क्या लिख रहे हैं, हम कोड लिखेंगे। लेट्स सी, मैं वापस से एपीआई चैटबॉट शेयर करता हूँ।
जस्ट सेकेंड, लुक। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं एक रिमाइंडर ऐड करने की कोशिश करता हूँ और मैं इंटेंशली मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिर्फ ऐड लिख के छोड़ूंगा। तो ये मुझे क्या बोल रहा है, इनवैलिड फॉर्मेट यूज एट इवेंट टाइम। अब ये इसने अपने आप से नहीं बोला, ये अब यहाँ पे बॉट फादर का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मैंने कोड में लिख रखा है कि आपको ये प्रिंट करना है, लेट्स चेंज दैट कोड। फिर हमें आपको समझ आएगा कि ये बैक हमारे मतलब मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, कि हमारे कोड से कनेक्टेड है भी कि नहीं। लेट्स चेंज इट। लुक, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इनवैलिड फॉर्मेट यूज एड इवेंट टाइम या जो भी। अब मैं लिखूंगा ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, स्टॉप करूंगा यहाँ से और ये वाली स्क्रिप्ट को रन करूंगा। हो गया, बॉट इज रनिंग। मैं स्क्रीन वापस से शेयर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ कुछ लिख के देखते हैं, स्लैश एड, सॉरी, ठीक है। सिमरत, हो गया भरोसा? ठीक है। सो बैकएंड जो भी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जो भी हम लिखना चाहेंगे ये बॉट उसको बस प्रिंट करेगा, क्योंकि इसका जो एपीआईज हैं इस बॉट की, जो डेटा ले रही हैं या डेटा सेंड कर रही हैं, वो हमारी स्क्रिप्ट से कनेक्टेड है, जो भी हम स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है। नाउ अब हम इसकी जो फॉर्मेट है उसी में फॉर्मेट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लैश एड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास का टाइम। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे टाइम लिखता हूँ और यहाँ पे जो मैंने टाइम का फॉर्मेट यूज़ किया वो 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में यूज़ किया। अब मान लो 8:50 हो रहा है, मैं यहाँ टाइम दूंगा 8 तो दे ही नहीं सकते, 2051। ठीक है, 51 हो गया तो 52। ये क्या बोलेगा कि क्लास एट का टाइम, ये कोई तो भी बग है जिस वजह से वहाँ पे एट आ गया है, वरना वो बग कुछ तो भी मैंने कोड में लिखा होगा जिसमें एट पहले लिखा है, वरना ये एट नहीं आता। ठीक है, तो फिलहाल के लिए रिमाइंडर ऐड हो गया, क्लास एट का टाइम इसमें आ रहा है और 2052 है। ठीक है, तब तक हम आ जाते हैं अपने कोड पे, फिर देखेंगे रिमाइंडर आया कि नहीं आया 2052 पे। लेकिन अगर अगर वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो स्क्रिप्ट रन हो रही है अगर मैंने उसको जाके स्टॉप कर दिया तो मुझे कोई भी आउटपुट इनपुट कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका बैकएंड बंद हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो अगर मुझे इस बॉट को रन करना है तो वो स्क्रिप्ट ऑल द टाइम रन होनी चाहिए मेरे पास। इसीलिए सर्वर्स यूज होते हैं, क्योंकि वो सर्वर्स क्या कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती है उनके पास, जो भी प्रोग्राम होता है वो क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली रन कर रहे होते हैं। जब इंस्टाग्राम बोलते हैं ना, इंस्टाग्राम बंद हो गया या फिर कुछ भी बंद हो गया, तो क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ के सर्वर्स ठप हो जाते हैं। स्क्रिप्ट्स जो रन हो रही होती हैं वो स्क्रिप्ट्स रन करना क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या होता है, सर्वर उनका ठप हो जाता है। 8:52 हो गया, रिमाइंडर नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूँ रिमाइंडर का, क्योंकि मैंने भी रिमाइंडर को चेक नहीं किया, देखते हैं आता है कि नहीं। बट हाँ, जब तक स्क्रिप्ट रन करेगी तब तक ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसका बैकएंड बंद होगा।
8:53 पे हो गया, कुछ रह गया होगा, लेट मी सी। ठीक है, या फिर ये अपडेट नहीं हुआ क्योंकि मुझे फ़ोन पे तो आया। हम्म, देखते हैं अभी कोड जब हम एक्सप्लेन करें तब साथ ही साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कम बैक टू द कोड। इसकी बोट इज रनिंग, सब कुछ ठीक है, फिर क्या हुआ? ठीक है, लेट्स सी। लुक, तो लेट्स सी, जो हमने फंक्शंस क्रिएट करे वो उनको एक एक करके देख लेते हैं इन केस अगर किसी में एरर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, ऐड रिमाइंडर फंक्शन। तो इसमें हमने क्या लिया, चैट आईडी और टेक्स्ट जो हैंडल ऐड रिमाइंडर नाम का हमने फंक्शंस क्रिएट किए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें दो चीजें यूज हो रही है, ट्राई और एक्सेप्ट। एनी आइडिया ये ट्राई और एक्सेप्ट क्या होता है? कभी देखा है ऐसा कुछ? हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने नहीं पढ़ा है, बट इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट्स तो नहीं क्रिएट हो सकते, क्योंकि जहाँ पे भी इनपुट होता है या फिर रियल टाइम होते हैं वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग ज़रूरी होता है। अभी शेयर वीडियो ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर किसी को नहीं पता, क्योंकि ये हमसे मिस हो गया। ठीक है, बट ऐसा समझिए मोटा माटी के इसके जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, वो हम एक बार देख लेते हैं। कि ये क्या करता है कि पहले जो भी आप कोड लिखेंगे वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा। अगर रन हुआ तो ठीक है, नहीं रन हुआ तो क्या कह देता है, वैल्यू एरर। इससे आसान शब्दों में एक्सेप्शन हैंडलिंग को नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकते कि ये क्या करेगा, आपने जो फंक्शन में कोड लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, एरर थ्रो करने के बजाय ये क्या करेगा, हमारे वैल्यू एरर को, जो एल्स वाला फंक्शन होता है उसकी तरह एक काम करता है। ये दो फंक्शन है इफ एंड एल्स की तरह पे, आप समझ लो कि पहले तो ये क्या करेगा, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उसको रन करके देखेगा, अगर रन हुआ ठीक है, वरना ये क्या देगा, वैल्यू एरर देगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमेशा रिक्वायर्ड होती है हमारे प्रोग्राम्स में, वरना हम पूरा प्रोग्राम क्रैश कर बैठेंगे, क्योंकि कहीं एक पे भी एरर आया बाकी आगे रन नहीं हो पाएगा। इट्स लाइक ए सीरीज, कि अगर एक सीरीज में कोई भी वन लाइन ऑफ द कोड वर्क करना खत्म कर दी तो बाकी का जो ऐप होगा पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर एक फीचर गलती से काम नहीं कर रहा है तो बाकी के फीचर बचे रहें, जैसे कि हमारे साथ हो रहा है कि रिमाइंडर तो ऐड हो रहा है, बट अगर यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होती तो पूरा का पूरा कोड क्या होता है, क्रैश हो रखा होता है। यहाँ पे हमें रिमाइंडर नहीं आ रहा, यानी कि कहीं ना कहीं टाइम लाइब्रेरी में गड़बड़ है। ठीक है, तो बाकी के हम एक फंक्शन देखते हैं। मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की आपको, या तो आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, इतना कुछ नहीं है, दो चार चीज़ें ही हैं इसमें, ट्राई और एक्सेप्ट में, इसके सिंटेक्स में, बाकी आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी मैं इसके स्पेसिफिकली इसके कोड को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना, लुक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ कि रिमाइंडर लिस्ट मैं क्रिएट जो कर रहा हूँ उसमें मैं ज्वाइन कर रहा हूँ किसको, इटरेशन मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जो मेरा यहाँ पे फंक्शन का इनपुट है वो क्या है, चैट आईडी। ठीक है, और उस चैट आईडी को मैं किस में इंस्टॉल कर रहा हूँ, यूजर रिमाइंडर्स में। ठीक, अब यूजर रिमाइंडर में इफ यूजर रिमाइंडर्स मतलब कि जो मैं वहां पर रिमाइंडर के लिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ, या फिर मैं चैट बोर्ड को बता रहा हूँ कि ये रिमाइंडर का टाइम, ठीक है, वो वाली वैल्यूज। ठीक, अब अब मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करना चाहूंगा, एक रिमाइंडर लिस्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जो क्या करेगा, सर सर स्क्रीन नहीं दिख रही, कौन सी स्क्रीन?
इज माई स्क्रीन विजिबल? क्या हुआ सुमन्यु भाई, आप इंटरनेट एक बार देख लीजिए, मे बी कुछ इंटरनेट एरर होगा। ठीक है, लुक, ठीक है। तो इसमें जब अगर मुझे ऐसे ऊपर ऊपर से देखना होगा तो मैं इसमें अगर मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर ना आऊँ तो इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा ये, एक आप इसको देखिए कि एड रिमाइंडर को ये एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर देगा और कुछ नहीं। ठीक है, अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी तक हमने नहीं देखी, अगर आपको एक बार देखना है फिर समझना कि ये क्या करेगा, रिमाइंडर को बस एक जगह स्टोर कर देगा, जो भी आप वैल्यू दोगे उसको स्टोर कर देगा और उसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस कर लेंगे। और प्रोसेस करने में हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एक स्प्लिट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। जो स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, हमारे टाइम को और इवेंट को अलग अलग करके रखेगा। यानी कि जो मैं यहाँ पे वैल्यूज दे रहा था चैट में, यहाँ पे अगेन लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सर एक चीज़ ट्राई कीजिए, जब आपने लिखा ना क्लास का टाइम, वहाँ सिर्फ क्लास लिखिए, क्या पता उसकी वजह से हो, क्योंकि आपने कहा ना कोई बग है ऐट के बाद। गुड, सही बोला। शायद या तो मैंने यहाँ पे स्पेस स्पेसिफाई नहीं किया है। आयशा हाँ बोलिए। सर मैंने आपने जो कोड सेंड किया था ना व्हाट्सएप पे, मैंने वही रन किया अपने बॉट के लिए, तो मुझे रिमाइंडर आ गया, लेकिन बस एक बार तो 3 बार मैंने ट्राई किया था तो एक ही बार आया उसमें से। लेकिन 3 बार मतलब मैंने 3 बार ऐड रिमाइंडर किया अलग अलग टाइम्स के लिए, उनमें से एक बार चल गया, 2 बार नहीं चला। 2 तो बार नहीं, कोड में कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने, एक मिनट लेट मी चेक कि मैंने क्लास एट अ टाइम का वो कोड लिखा है कि नहीं। वापस से कोड पे आते हैं। ठीक है, गुड। शायद आपने कोड देखा जो मैंने रिमाइंडर लिस्ट क्रिएट करते हुए, एक बार वापस से आते हैं रिमाइंडर लिस्ट पे। कोड, सॉरी मैं कोड शेयर करता हूँ वापस से। कोड विजिबल, कोड स्क्रीन आ गई? ठीक है, लुक, मैं यहाँ पे जब मैं रिमाइंडर लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ दोनों को, तब मैंने यहाँ लिखा है इवेंट एट टाइम। तो जब ये वेरिएबल इवेंट काम कर रहा है तो ये स्ट्रिंग की बजाय कोई एक वेरिएबल को ही काउंट कर रहा है। इन शॉर्ट, जो ऐसा समझिए कि मैं जब यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्लास का टाइम हो गया या कुछ भी, तो वो क्या हो रहा है, एक अलग अलग वेरिएबल्स काउंट होगा। यानी कि आप ऐसा समझिए कि अगर मैं सिर्फ क्लास लिखता हूँ तो वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ तो स्ट्रिंग के लिए मैंने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ एक इवेंट नाम का वेरिएबल डाला है जिसका इनपुट क्या है, जो मैं सिंटेक्स में एट और एट के इधर लिखता हूँ, यानी कि क्लास और टाइम, यानी कि जो इवेंट का नाम और टाइम उसके बीच में एट है। ठीक है, इस वजह से एरर है। लेट मी चेक विद अगेन, ये काम कर भी रहा है कि कुछ दूसरा एरर है। 9-1 हो रहा है, दूसरे रिमाइंडर डालते हैं। स्लैश ठीक है, मैंने 2103 पे डाला है। लेट्स सी चलता है कि तब तक हम वापस से कोड पे आ जाते हैं। तो लिसन कि कोई कुछ बोल रहा हूँ? ना ना, आपकी स्क्रीन हैंग हो गई थी तो मुझे लगा आपने कुछ लिखा, बस वही था। नहीं नहीं, वो मैं अभी तक मैंने वो वहाँ पे जाके लिख दिया, शेयर नहीं किया अभी, स्क्रीन कोड ही शेयर्ड है। ठीक है, सो जो हमारा पहला फंक्शन है हैंडल रिमाइंडर, वो क्या कर रहा है कि हमारी जो टाइम है, जो टाइम की फंक्शन है, या फिर आप ऐसा समझिए कि ये ज्वाइन कर रहा है पूरे के पूरे i+1 जो इटरेटर में यूज कर रहा हूँ, किसके लिए, कहाँ पे गया,
यहाँ के लिए फॉर आई, यानी कि जो ये फॉर लूप के लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने आई, जो मैंने यहाँ पे वापस से लिखा i+1 करके, जो बार बार चेंज होगा तो एक वैल्यू ऐड होती जाएगी। इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे फॉर लूप को जो नॉर्मल सिंटेक्सिंग होती है एक स्टेप में करके, उसके बजाय एक ही लाइन में लिखा कि फॉर आई इवेंट का नाम, टाइम, इन, ये जो इन्यूमरेट है ये क्या करता है, ये जो शेड्यूल नाम की लाइब्रेरी है, ये एन्यूमरेट फंक्शन ही हमें रिमाइंडर्स को क्या करता है, सेट करता है। कैसे? पहले ये चेक करेगा टाइम को, फिर टाइम के बाद ये चेक करेगा जो हमारा इवेंट है उसको, और एक बार इवेंट में जो भी लिखा होता है जो भी, और वो टाइम एक बार टाइम वेरिएबल से इसको इनपुट मिल जाता है कि फॉर एग्जांपल कि हाँ अब टाइम हो गया है, तो ये एन्यूमरेट क्या करेगा, ये यूजर रिमाइंडर को क्या करेगा, अपडेट कर देगा। ठीक है, और यूजर रिमाइंडर अपडेट होते ही ये रिमाइंडर लिस्ट में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर लिस्ट में आ जाएगा जो सेम सिंटेक्स आप लिख चुके हो, इवेंट और टाइम। तो यहाँ पे अब प्रिंट होके जब आएगा तो रिमाइंडर लिस्ट प्रिंट होगी, और रिमाइंडर लिस्ट में जो प्रिंट हो रहा होगा वो किसके थ्रू आ रहा है, एन्यूमरेट के थ्रू आ रहा है। यानी कि बार बार अगर ये चेक करेगा कि जैसे टाइम की वैल्यू हमारे दिए हुए टाइम को पहले, यानी कि टाइम लाइब्रेरी में ये टाइम चेक करेगा और ये हमारा टाइम चेक करेगा, अगर दोनों सेम हुई आ गया रिमाइंडर। चलो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। अब आप एक और आपने बोला कि इसमें दूसरी बार रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि मैंने उसके लिए अब अपडेट फंक्शन तो मैंने बनाया है, होना तो चाहिए क्योंकि मैंने उसमें भी ऐड किया है। एक बार वापस एक और रिमाइंडर देके देखते हैं। स्लैश ऐड क्लास 2106। ठीक है, वापस से आते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे कि ये एन्यूमरेट फंक्शन जो शेड्यूल लाइब्रेरी का है, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो टाइम की वैल्यू जो हमने एज एन इनपुट दी है इसमें, वो मतलब कंटिन्यूसली ये चेक कर रहा होगा कि वो जैसे ही इक्वल होगी हमारे करंट टाइम की और टाइम लाइब्रेरी की, तब ये क्या करेगा, जो हमारा इवेंट का नाम होगा वो उसको कहाँ भेज देगा, यहाँ पे रिमाइंडर लिस्ट में अपडेट कर देगा, और वो यहाँ पे हमारे प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, और वापस से ये यहाँ पे हम जो सेंड मैसेज नाम का फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, सेंड मैसेज जो भी कहाँ गया ये रहा, जो हमने यहाँ पे सेंड मैसेज नाम का फंक्शन क्रिएट किया था, ये इस यूआरएल पे आ जाएगा। जब तक इस यूआरएल पे सेंड मैसेज में चैट आईडी अपडेट नहीं होगी और टेक्स्ट अपडेट नहीं होगा, तब तक ये जो पेलोड नाम का पैरामीटर है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये जो सेंड मैसेज है ये किसको अपडेट कर रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू सेंड मैसेज में जो अपडेट हो रही है वो यहाँ के लिए सेंड मैसेज वाले यूआरएल के लिए या फिर दूसरे एपीआई कॉल के लिए अपडेट हो रही है। ठीक है, लुक, अब ये जो दूसरा फंक्शन है व्यू रिमाइंडर्स वाला, नहीं आयशा आ तो रहा है रिमाइंडर, तभी मैं श्योर था क्योंकि हमने जो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। लुक, वापस हमने 2106 का डाला था तो रिमाइंडर अपडेट हो रहा है।
ये मैं क्यों श्योर था कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही कोड में इतने बड़े अक्षरों में हैंडल अपडेट्स को लिख रखा है। अगर हैंडल अपडेट्स में मैंने डिफाइन नहीं किया होता कि जो पुराना वाला टेक्स्ट है उसको फॉरगेट करके नया टेक्स्ट अपडेट करो, तो ये एक बार ही दे रहा होता, जो मैं अभी मैं बता रहा था ना आपको कि सिर्फ एक बार रन होता, दोबारा से रन नहीं होता, क्योंकि ना चैट आईडी अपडेट होती, ना टेक्स्ट अपडेट होता, ना ही इवेंट अपडेट होता। ठीक है ईशा, आप एक बार वापस से चेक करिए, मे बी सॉर्ट ऑफ सम रीजंस वो नहीं रन हो रहा होगा, या फिर आपकी स्क्रिप्ट जो होगी वो रन होना बंद हो गई होगी। और हाँ सिमरत बोलो। सो अगर हम साइमल्टेनियसली 2-3 ये रिमाइंडर्स करेंगे तब फिर एरर आएगा? आपने कहा ना पुराना वाला फॉरगेट करता है। नहीं, वो मैंने तो अभी ऐड ही नहीं किया ना, मैंने तो इसमें सिर्फ एक ही रिमाइंडर के लिए सेट किया ना। आप साइमल्टेनियसली 4-5 ऐड करोगे वो आएगा। लाइक ठीक। फॉर एग्जांपल आप 2 या 4 अपडेट करके देखो, अगर वो अपडेट नहीं हो रहा होगा तो लास्ट वाला रिमाइंडर आएगा। ट्राई एडिंग 2-4 रिमाइंडर। आप 9 हो रहा है, 9 10 11 10 के एक दो वापस से चेक करके देखना। और वो अगर हमारे इस फंक्शन में नहीं होंगे, वापस से आता हूँ इस कोड पे, वो हमारे इस हैंडल अपडेट्स नाम के फंक्शन में ऐड नहीं होंगे, तब तक वो नहीं आएगा। और हाँ, मे भी हो सकता है कि अगर आपने डायरेक्ट डाला तो नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गेट अपडेट्स जब ये रन होगा तो ये ऑफसेट वैल्यू चेक करेगा कि लास्ट अपडेटेड आईडी क्या है, और लास्ट अपडेटेड आईडी में आपका जो लास्ट अपडेटेड टेक्स्ट है वो आना चाहिए। तो एक बार आप ट्राई करके देखो ये ले रहा है कि नहीं ले रहा है। बट मे भी हो सकता है कि आपने जो आयशा डाला था वो मतलब साइमल्टेनियसली डाला था। सर मेरा भी रन हुआ 2-3 बार लिखने से, जैसे आपका आया, मैं उस टाइम पे कुछ और बोल रही थी। है मतलब कि क्या आ रहा था? सर जो आपने दिखाया ना रन करके कि हाँ एक बार रिमाइंडर आया, उसके बाद फिर से आया, जब फिर से ऐड ये यूज़ किया कमांड, तो मेरा भी वैसे रन हो रहा है। उस टाइम पे मैं कुछ और बोल रही थी, तो इसमें मुझे इश्यू नहीं हो रहा है कुछ। ठीक है, ठीक है। वैसे साइमल्टेनियसली भी इसमें अपडेट होंगे, क्योंकि लुक, जब हम इसमें बेस यूआरएल्स में जब गेट अपडेट ले रहे हैं तो लेट जो लास्ट अपडेटेड आईडी है वही तो चेंज होगी। अगर लास्ट अपडेटेड आईडी मैं यहाँ पे अगर स्टोर ना कर रहा होता, ये जो नन लिखी है, तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। और एक बार ये इसमें अगर मैं 10 आईडी में 10 रिमाइंडर भी रखूंगा तो वो भी स्टोर होंगे ही होंगे। तो वो आएंगे रिमाइंडर्स, ऐसा नहीं है कि वो रिमाइंडर नहीं आएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे इस डिक्शनरी में यहाँ पे रिमाइंडर्स में ऐड होते जाएंगे। जो रिमाइंडर्स नाम की डिक्शनरी है वो स्पेसिफिकली हमारे सारे रिमाइंडर्स को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। और लास्ट अपडेट आईडी में जो हमारी चैट आईडी होगी उसकी, वो इसमें अपडेट होती जाएगी। तो आएंगे, आप 10 भी करके देखिएगा। दूसरा, अगर हमें चेक करना है और अगर मान लीजिए कि अगर वो 10 स्टोर नहीं हो रहे होते, अगर वो अपडेट हो रहे होते, जो मैं वनिश बोल रहा था वो क्या कर रहा था कि जो प्रीवियस चैट हो रहा है, यानी कि एक बार जब इवेंट में मुझे रिमाइंडर आ गया कि क्लास एट दिस टाइम, तो वो जो टेक्स्ट एक बार प्रिंट हो गया, या फिर एक आईडी से मैंने उसको क्या बोलते हैं पुट कर दिया, ठीक है, या फिर ऐसे समझो जब मैंने किसी जगह पे कोई डेटा भेज दिया, फिर मैं वो रिमूव कर रहा हूँ कि वो टेक्स्ट में दोबारा प्रिंट ना हो, स्टोर्ड है। हमारे जो आईडी हमने क्रिएट किए हैं, 2 डिक्शनरी ऊपर जो क्रिएट किए हैं, जिसमें पहली है हमारी रिमाइंडर्स नाम की ये वाली, और दूसरी आईडीज के लिए लास्ट अपडेट आईडी। अगर एक बार मैंने कोई भी डेट दी वो यहाँ पे स्टोर तो हो जाएगी, बट जब प्रिंट होगी तो प्रिंट होकर दोबारा से वो प्रिंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑफसेट वैल्यूज हैं वो न्यू अपडेट्स को कैच करती हैं बस, और पुरानी अपडेट्स को भूल जाएंगे। यानी कि अगर पहले मैंने कुछ और दे रखा होगा कि फॉर एग्जांपल पहले मैंने एक गलत, इन शॉर्ट ऐसे समझिए, आप मिलके मुझे अच्छा एग्जांपल कि पहले मैंने स्लैश ऐड लिखा, यानी कि इनकरेक्ट फॉर्मेट। दूसरा, मैं अब दोबारा जब लिखने जाऊंगा तो मैं करेक्ट फॉर्मेट लिखूंगा। तो इसके लिए 2 ऑफसेट वैल्यूज हुई। पहली ऑफसेट वैल्यू क्या, जो मैंने इसको लिखा स्लैश ऐड जो इनकरेक्ट था, लेकिन स्लैश ऐड लिखने के बाद तो इसने मुझे बोल दिया कि ठीक है आप वापस से करेक्ट करके लिखो। बट जब मैं नई वापस से करेक्ट वाली आईडी दूंगा या फिर करेक्ट वाला फॉर्मेट दूंगा, तो वो भी एक दूसरी अपडेट हो गई। और ये क्या करेगा, दोनों अपडेट को साथ में लेके चलेगा। पहले ये प्रिंट करेगा कि करेक्ट वाली वैल्यूज लिखिए, दूसरी बार लिखेगा आप एक काम करिएगा, ये डिफाइन हैंडल अपडेट्स, ये कोड को डिलीट कर दीजिएगा, फिर कोड को रन करके देखिएगा, समझ आ जाएगी।
ठीक है। अब ये बाकी के फंक्शन हैं हमारे। अगेन एक्सेप्शन हैंडलिंग, अरे लुक अब वापस से समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बस उतना समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि स्प्लिट का यूज़ कर रहा हूँ। जो स्प्लिट क्या करेगी, जो मेरे इवेंट और टाइम की जो कमांड है उसको क्या करेगी, स्प्लिट करेगी जो जो भी मैं वहाँ पे टाइप करूँगा, क्योंकि अगर मैं वो नहीं लिखूंगा तो वो पूरा एक ही स्ट्रिंग में काउंट होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन की वजह से हमें वहाँ पे एरर आ रहा था कि जब मैं लिख रहा था क्लास का टाइम हो गया, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल के लिए डिफाइंड है। ठीक है, आप एक बार देखिएगा कि अगर मुझे स्ट्रिंग डालनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हो रहा है कि अब मेरा जो इन्यूमरेट है वो क्या कर रहा है कि वापस से चेक करेगा कि अगर मैंने कितने सारे इसमें इवेंट और टाइम स्टोर करे हैं। ठीक है, और वो जो भी स्टोर करे हैं वो सारे के सारे किसमें हो जाएंगे, इस रिमाइंडर लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे। और वो रिमाइंडर लिस्ट को जब मैं कॉल करूंगा, यानी कि जब मैं वहाँ पर चैट में लिखूंगा चैट आईडी में के स्लैश व्यू, तो वो यहाँ पे मुझे क्या दिखाएगा, यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि योर रिमाइंडर्स लिस्ट इज जो भी मैंने स्टोर करे होंगे। अदरवाइज ये क्या शो करेगा, यू हैव नो रिमाइंडर्स, अगर चैट आईडी में कोई भी खाली जगह नहीं है। यानी कि जब मैं रिमाइंडर्स डॉट गेट आई डी में जो मैंने ये दो वैल्यूज लिखी हैं, अगर मुझे कोई चैट आईडी नहीं मिली तो ये दिखाएगा नो रिमाइंडर्स। ठीक है, ये सारे फंक्शंस हैं। अब वो सब तो छोड़ो, अब जरा पहले ये देख लेते हैं कि ये लास्ट में क्या लिखा है, वाइल ट्रू करके। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक ही सेम है। अब हैंडल डिलीट रिमाइंडर, इसमें भी एक्सेप्शन हैंडलिंग है कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं स्प्लिट करूंगा जो भी मैंने कोड लिखा होगा, सॉरी जो भी मैंने इसमें कमांड लिखी होगी। लेकिन इसमें मैं क्या करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि जब मैं स्टोर कर रहा हूं तो मैं डिक्शनरी में स्टोर कर रहा हूँ। एम आई राइट? अगर मैं डिक्शनरी में स्टोर कर रहा हूँ तो वो उसकी इंडेक्सिंग हो ही रही होगी, क्योंकि डिक्शनरी में हमारे पास एक स्पेसिफिक लोकेशन हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि अगर मुझे डिलीट करना है तो पहले मैं उसकी क्या करूंगा, एक इंडेक्सिंग करूंगा। इंडेक्सिंग करने के बाद चेक करूंगा कि रिमाइंडर इंडेक्स कितना है जो मुझे यहाँ से मिलेगा, और वापस से जब मैं टेक्स्ट डॉट पे स्प्लिट, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है जो मैं लिखूंगा, मतलब रिमाइंडर नंबर कौन सा सिलेक्ट करना है, इंडेक्सिंग 1 2 3 4 5 या जो भी मैं रिमाइंडर को डिलीट करने के लिए क्लिक करूंगा। आप वहाँ पे जब डिलीट की कमांड डालेंगे तब आपको रिमाइंडर्स दिखाएगा, और जो भी इंडेक्सिंग का आपको डिलीट करना होगा वो आप वहाँ पे जब सेलेक्ट करोगे वो किस में आ जाएगा, इसमें रिमाइंडर इंडेक्स में। और माइनस करेगा ये 1, -1 क्यों करेगा, क्योंकि जो भी इंडेक्सिंग इसमें स्टोर होगी वो होगी 0 1 2 3 नाम से, लेकिन आप जो इंडेक्सिंग दे रहे होगे वो दे रहे होगे 1 2 3 नाम से, क्योंकि उसमें इंडेक्सिंग में तो हम 0 इंडेक्सिंग नहीं लिखते ना, वहाँ तो 1 2 3 ही होता है। इसलिए ये क्या करेगा, रिमाइंडर इंडेक्स जो होगा उसको करेगा -1। अगर आपने 1 दिया होगा, ये जैसे ही आपके पास लिस्ट आएगी रिमाइंडर्स की, तो वापस स्क्रीन पर आ जाता हूँ। जैसे ही आपने क्या दी होगी इसमें कि लिस्ट आपके सामने जो आएगी, आपको वहाँ पे 1 2 3 दिख रहा होगा, बट कोड को 1 2 3 समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से एक बार लिख देते हैं कि भाई जो भी सामने वाला इनपुट देगा एज 1 2 3 उसको -1 कर देना। क्यों? क्योंकि जो इंडेक्सिंग हमने स्टोर की है बाय डिफॉल्ट जो स्टोर होती है वो कैसे स्टोर होती है, 0 1 2 3 नाम से। ठीक है, तो रिमाइंडर इंडेक्स अपने आप ही सेट हो जाएगा। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट इसमें था कि इफ चेट आईडी रिमाइंडर्स एंड 0, लाइक अब यहाँ पे जो हमने एंड नाम के फंक्शन पढ़े थे वो अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा रिमाइंडर इंडेक्स की, और उसकी जो लेंथ होगी, लेन हमने पढ़ा है मैं वापस से नहीं दिखाऊंगा, कि रिमाइंडर्स की चैट आईडी के अगर उससे लेस देन हुई तब ये क्या कर लिखेगा, रिमूव। यानी कि ऐसा समझिए कि मेरे पास 10 रिमाइंडर थे, 10 रिमाइंडर्स मैंने 9 सेलेक्ट किया, 9 सेलेक्ट किया मतलब उसकी इंडेक्सिंग होगी 8 में ये चेक करेगा कि जो इनपुट है वो 0 से बड़ा है कि नहीं, क्योंकि 0 का मतलब कि कोई इंडेक्सिंग ही नहीं थी, फिर भी मैं फिजूल में क्या बोलता है डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ तब के लिए। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, उस स्ट्रिंग की लेंथ चेक करेगा, जैसे ही उसकी लेस देन हो जाएगी यानी कि ये क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। कैसे डिलीट करेगा, उस इंडेक्स की वैल्यू को नहीं कर लेते हैं, इट्स ऑलरेडी 9:18। आप
अभी मतलब जो आपका कोड है, आप एक काम करिएगा, 10-12 रिमाइंडर डालिए, 10-12 रिमाइंडर में से एक सिलेक्ट करके देखिएगा, फिर आपको जो लिस्ट आती है, फिर आप उसमें से एक डिलीट की कमांड लिखिएगा। मैं कमांड आपको भेज देता हूँ कि इसमें हमने कौन कौन सी यूज़ की हैं। भेजना क्या है वो तो आप ऊपर वहाँ पे जब आप बॉट में लिखेंगे तो पहले ही वो आपको पहला वही दिखाएगा कि कौन कौन सी सिंटेक्स है उसकी, मतलब जो भी उसकी हमने प्री डिफाइंड उसमें सिंटेक्स लिख रखी है, जो ये वाली है, ऐड, व्यू और डिलीट। ठीक है, तो जब इसको आप रन करके देखेंगे तब ही आपको ये सारे के सारे रिमाइंडर लिस्ट होंगे, उन लिस्ट में से कोई एक आपको हटाना होगा। ठीक है, अब ये आ गया चेक रिमाइंडर एंड सेंड नोटिफिकेशन कि ये क्या करेगा कि टाइम हुआ कि नहीं हुआ, रिमाइंडर भेजना है कि नहीं भेजना है, ये वापस से चेक करेगा। करेंट टाइम नाम का वेरिएबल, जो टाइम, ये टाइम लाइब्रेरी का एक फंक्शन है। जो परसेंट टाइम का मतलब है कि मैं आवर्स में क्या ले रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, परसेंट मिनट, यानी कि आवर्स में लिखने का मतलब है कि 20, 21, 22 इस फॉर्मेट में मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो ट्रेबल्स या बोलो या दो ट्रेट ले रहा हूँ, एक चैट आईडी और दूसरा यूजर रिमाइंडर्स, और मैं ट्रेबल में किस में देख रहा हूँ, रिमाइंडर के आइटम्स में। आइटम्स में क्या होगा, सारे के सारे रिमाइंडर्स जो मैंने सेट करे। ठीक है, एक और लूप ले रहा हूँ इवेंट नाम का, जिसमें मैं, क्योंकि ये तो हो गया चैट आईडी के लिए, अब चैट आईडी में चेक क्या करना है मुझे, इवेंट और रिमाइंडर टाइम। ठीक है, अब ये किस में जा रहा है, यूजर टाइम में। अब ये देखो होता क्या है कि अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा कि यूजर रिमाइंडर्स क्या है, आप कोड लिखते लिखते भूल गए, तो ये आपको ऊपर देख लेना होता है कि जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लास्ट अपडेट आईडी लिखूंगा तो ये अपने आप ही ऐसे दिखा देता है, लास्ट अपडेट आईडी एक ये रहा लास्ट अपडेट आईडी, तो यहाँ से समझ आ जाता है। फिलहाल के लिए ये यूजर रिमाइंडर हमारा क्या है, ये वाला जो पहले का इटरेट है, यानी कि चैट आईडी के लिए कि कौन से नंबर का रिमाइंडर है। ये भी तो पता होगा कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, वो हमें चेक करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, यूजर रिमाइंडर्स। ठीक है, इफ रिमाइंडर टाइम इज इक्वल्स टू करंट टाइम। अब रिमाइंडर टाइम, इफ रिमाइंडर टाइम इक्वल्स टू करंट टाइम, यानी कि जो मैंने रिमाइंडर टाइम में वैल्यू पुट की है, कहाँ पे वैल्यू पुट की है, रिमाइंडर टाइम में वैल्यू मैंने पुट की है यहाँ पे, इधर ऐड रिमाइंडर में। ठीक है, रिमाइंडर एडेड में जो ये इवेंट में टाइम स्ट्रिंग। ठीक है, इस टाइम स्ट्रिंग में मैंने जो वैल्यू पुट की है वो कहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे आके रिमाइंडर टाइम में। ठीक है, अगर इक्वल है तो ठीक है, सेंड मैसेज कर देगा चैट आईडी और जो भी रिमाइंडर होगा और इवेंट का नाम। इवेंट का नाम कहाँ से उठेगा, इवेंट का नाम यहाँ से आएगा, यहाँ से। ठीक है, अब ये ये हम सीधा सीधा बोल रहे हैं कि शेड्यूल नाम की जो लाइब्रेरी है इसका एक फंक्शन होता है एवरी। एवरी का मतलब होता है कि ये पूरे कोड को या फिर पूरे रिमाइंडर्स को कितने मिनट बाद चेक करना है। ठीक है, या फिर कितने मिनट बाद, ये तो यहाँ पे दिखोगे कि आप चेक करना है, जो भी करना है या जो भी फंक्शन को रन करना है। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है कि शेड्यूल नाम की जो लाइब्रेरी है इसमें मैंने लिखा एवरी, यानी कि हर एक मिनट में क्या करना है, डू चेक रिमाइंडर्स। चेक रिमाइंडर्स मतलब ये वाले फंक्शन को कॉल करना है, तो हर एक मिनट बाद ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन कॉल होगा तो बाकी के जितने भी फंक्शंस हैं सारे के सारे किससे अटैच्ड हैं, इसी फंक्शन से, तो सब एक एक करके कॉल होंगे। ठीक है, और फाइनली व्हाट इज रनिंग आ जाएगा, फिर बाद में आप देखिएगा कि टाइम स्लीप 1 मतलब कि 1 मिनट बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो ये स्लीप मोड में चला जाता है। ठीक है, शेड्यूल डॉट रन पेंडिंग, यानी कि ये आ गया कि आपको चाहिए फॉरएवर लूप में मैं डाल रहा हूँ कि अगर जो शेड्यूल रन पेंडिंग नहीं लिखूंगा तो होगा कि ये एक ही बार रन होगा, दोबारा से रन नहीं होगा। यानी जो मैं ये 1 मिनट वाला टास्क बता रहा हूँ ये सिर्फ एक ही बार चलेगा, दोबारा नहीं चलेगा। इसलिए बाकी के टाइम चलाने के लिए भी मैं इसको इसमें लिख रहा हूँ वाइल ट्रू में। आई नो कि बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया, बट आप एक बार इसको खुद से ट्राई करिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बाकी के जो, और स्पेसिफिकली अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं समझ आती है तो उसका वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपको अगर मिल जाए कहीं तो
मिल जाए कहीं तो क्या, बहुत सारा वीडियो मिल ही जाएगा। आप एक बार देख लीजिएगा, कल आप आगे डाउट्स आप मैं डिस्कस कर सकता हूँ, उसमें टाइम ही लगेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक बार खुद से गो थ्रू कर लीजिएगा, वरना बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के इसके एक भी फंक्शन नहीं समझ आने वाले। ठीक है, तो बस चलते हैं। अभी कोड मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया। एक और है असाइनमेंट में मैं दूंगा, अभी देख लेते हैं कल क्या है, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, तो फ्राइडे सैटरडे को देते हैं कि एक और बॉट बनाने की कोशिश करिएगा। एपीआई मैं खुद ही दूंगा आपको कहाँ पे बनानी है, जिसमें हम टेलीग्राम के बजाय व्हाट्सएप वेब का यूज़ कर रहे होंगे। व्हाट्सएप वेब में कैसे हम स्पैम मैसेजेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत सारी चीज़ें अगर जो ऊपर से कही है, आफ्टर 10 PM यू कैन टेक्स्ट मी। अगर कोई भी फंक्शन आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आफ्टर 10 PM यू कैन टेक्स्ट मी। जो भी समझ नहीं आया आई विल पुट इट इन द टेक्स्ट, अदरवाइज आई विल पुट यू ऑन द कॉल। ठीक है, क्योंकि कोड मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर रखा है। अगर क्योंकि आई नो मैंने बहुत जल्दी कर दिया लास्ट के फंक्शन, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कॉल मी, टेक्स्ट मी, कॉल मैं खुद करूँगा। अगर टेक्स्ट पे बताना होगा तो वहीं से। ओके, बाय बाय, विल सी यू टुमारो।